أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. سورۃ البقرہ ترجمہ 8واں رکوع. بے شک ایمان والے اور یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کے پجاریوں میں سے وہ کی سچے دل سے اللہ اور پچھلے دین پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کا ثواب انہیں ان کے رب کے پاس ہیں اور نہ انہیں کچھ اندیشہ آشنکاد ہو اور نہ کچھ غم. اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور پہاڑ کو اونچا کیا اور جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر اللہ کی کرپا اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹے والوں میں ہو جاتے. اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے شنیوار میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ گھٹنا اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں. فرمایا خدا کی پناہ کی میں جاہلوں سے ہوں. بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی.
कहा, वह फरमाता है कि वह एक गाय है, न बूढ़ी और न उसर, बल्कि उन दोनों के बीच में। तो करो जिसका तुम्हें हुक्म होता है। बोले, अपने रब से दुआ कीजिए, हमें बता दे उसका रंग क्या है। कहा, वह फरमाता है, वह एक पीली गाय है जिसकी रंगत दहढ़ाती, देखने वालों को खुशी देती। बोले, अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए साफ बयान कर दे वह गाय कैसी है। बेशक गायों में हमको शुबह पड़ गया, और अल्लाह चाहे तो हम राह पा जाएंगे। कहा, वह फरमाता है कि वह एक गाय है जिससे खिदमत नहीं ली जाती कि जमीन जोते और न खेती को पानी दे, बेऐब है जिसमें कोई दाग नहीं। बोले, अब आप ठीक बात लाए। तो उसे जिबह किया, और जिबह करते मालूम न होते थे। तफसीर सूरह बकरा 8वां रुकू। इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम ने सदी से रिवायत की कि यह आयत हजरत सलमान फारसी अल्लाह उनसे राजी हो के साथियों के बारे में उतरी कि तुम तौरात मानोगे और उस पर अमल करोगे, फिर तुमने उसे निर्देशों को बोझ जानकर कबूल करने से इनकार कर दिया, जबकि तुमने खुद अपनी तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ऐसी आसमानी किताब की प्रार्थना की थी जिसमें शरीयत के कानून और इबादत के तरीके विस्तार से दर्ज हों, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तुमसे बार बार इसके कबूल करने और इस पर अमल करने का एहद लिया था। जब वह किताब दी गई तो तुमने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया और एहद पूरा न किया। बनी इस्राइल के एहद तोड़ने के बाद हजरत जिब्रील ने अल्लाह के हुक्म से तूर पहाड़ को उठाकर उनके सरों पर लटका दिया, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम एहद कबूल करो वरना ये पहाड़ तुम पर गिरा दिया जाएगा और तुम कुचल डाले जाओगे। वास्तव में पहाड़ का सर पर लटका दिया जाना अल्लाह की निशानी और उसकी कुदरत का खुला प्रमाण है। इससे दिलों को इत्मीनान हासिल होता है कि बेशक यह रसूल अल्लाह की कुव्वत और कुदरत के जाहिर करने वाले हैं। यह इत्मीनान उनको मानने और एहद पूरा करने का असल कारण है, यानी पूरी कोशिश के साथ। यहाँ फजल व रहमत से या तौबह की तौफीक मुराद है या अजाब में विलंब देरी। एक कथन यह भी है कि अल्लाह की कृपा और रहमत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जात मुराद है। मानी ये है कि अगर तुम्हें नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अस्तित्व की दौलत न मिलती और आपका मार्गदर्शन नसीब न होता तो तुम्हारा अंजाम नष्ट होना और घाटा होता। इला शहर में बनी इस्राइल आबाद थे। उन्हें हुक्म था कि शनिवार का दिन इबादत के लिए खास कर दें, उस रोज शिकार न करें और सांसारिक कारोबार बंद रखें। उनके एक समूह ने यह चाल की कि शुक्रवार को दरिया के किनारे बहुत से गड्ढे खोदते और शनिचर की सुबह को दरिया से इन गड्ढों तक नालियां बनाते, जिनके जरिए पानी के साथ मछलियां आकर गड्ढों में कैद हो जाती। इतवार को उन्हें निकालते और कहते कि हम मछली को पानी से शनिचर के दिन नहीं निकालते। 40 या 70 साल तक यह करते रहे। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नबुव्वत का एहद आया तो आपने उन्हें मना किया और फरमाया कि कैद करना ही शिकार है। जो शनिचर को करते हो इससे हाथ रोको वरना अजाब में गिरफ्तार किए जाओगे। वह बाज न आए। आपने दुआ फरमाई। अल्लाह ताला ने उन्हें बंदरों की शक्ल में कर दिया। उनकी अक्ल और दूसरी इंद्रियां हवास तो बाकी रहे, केवल बोलने की कुव्वत छीन ली गई। शरीर से बदबू निकलने लगी। अपने इस हाल पर रोते रोते 3 दिन में सब हलाक हो गए। उनकी नस्ल बाकी न रही। ये 70,000 के करीब थे। बनी इस्राइल का दूसरा समूह जो 12,000 के करीब था, उन्हें ऐसा करने से मना करता रहा। जब ये न माने तो उन्होंने अपने और उनके मोहल्लों के बीच एक दीवार बनाकर अलाहिदगी कर ली। इन सब ने निजात पाई। बनी इस्राइल का तीसरा समूह खामोश रहा। उसके बारे में हजरत इब्ने अब्बास के सामने अकरमह ने कहा कि वो माफ कर दिए गए क्योंकि अच्छे काम का हुक्म देना फर्जे किफाया है। कुछ ने कर लिया तो जैसे कुल ने कर लिया। उनकी खामोशी की वजह यह थी कि ये उनके नसीहत मानने की तरफ से निराश थे। अकरमह की यह तकरीर हजरत इब्ने अब्बास को बहुत पसंद आई और आप खुशी से उठकर उनसे गले मिले और उनका माथा चूमा। फतहुल अजीज। इससे मालूम हुआ कि खुशी में गले मिलना रसूलुल्लाह के साथियों का तरीका है। इसके लिए सफर से आना और जुदाई के बाद मिलना शर्त नहीं। बनी इस्राइल में आमील नाम का एक मालदार था।
उसके चचाजाद भाई ने विरासत के लालच में उसको कत्ल करके दूसरी बस्ती के दरवाजे पर डाल दिया और खुद सुबह को उसके खून का दावेदार बना। वहां के लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से विनती की कि आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला सारी हकीकत खोल दे। इस पर हुक्म हुआ कि एक गाय ज़िबह करके उसका कोई हिस्सा मकतूल मृतक को मारें, वह जिंदा होकर कातिल का पता देगा, क्योंकि मकतूल मृतक का हाल मालूम होने और गाय के ज़िबह में कोई मुनासिबत तल्लुक मालूम नहीं होती। ऐसा जवाब जो सवाल से संबंध न रखे जाहिलों का काम है। या ये मानी है कि मुहाकिमे न्याय के मौके पर मजाक उड़ाना या हंसी करना जाहिलों का काम है और नबियों की शान उससे ऊपर है। बनी इस्राइल ने समझ लिया कि गाय का ज़िबह करना अनिवार्य है, तो उन्होंने अपने नबी से उसकी विशेषताएं और निशानियां पूछी। हदीस शरीफ में है कि अगर बनी इस्राइल यह बहस न निकालते तो जो गाय ज़िबह कर देते काफी हो जाती। हुजूर सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो इंशाअल्लाह न कहते हरगिज वह गाय न पाते। हर नेक काम में इंशाअल्लाह कहना बरकत का कारण है। यानी अब तसल्ली हुई और पूरी शान और सिफत मालूम हुई। फिर उन्होंने गाय की तलाश शुरू की। उस इलाके में ऐसी सिर्फ एक गाय थी। उसका हाल यह है कि बनी इस्राइल में एक नेक आदमी थे और उनका एक छोटा सा बच्चा था। उनके पास सिवाय एक गाय के बच्चे के कुछ न रहा था। उन्होंने उसकी गर्दन पर मुहर लगाकर अल्लाह के नाम पर छोड़ दिया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ रब, मैं इस बछिया को इस बेटे के लिए तेरे पास अमानत रखता हूं। जब मेरा बेटा बड़ा हो यह उसके काम आए। उनका तो इंतकाल हो गया। बछिया जंगल में अल्लाह की हिफाजत में पलती रही। यह लड़का बड़ा हुआ और अल्लाह के फजल से नेक और अल्लाह से डरने वाला, माँ का फरमानबरदार था। एक रोज उसकी माँ ने कहा, बेटे, तेरे बाप ने तेरे लिए अमुक जंगल में खुदा के नाम पर एक बछिया छोड़ी है। वह अब जवान हो गई होगी। उसको जंगल से ले आ और अल्लाह से दुआ कर कि वह तुझे अता फरमाए। लड़के ने गाय को जंगल में देखा और माँ की बताई हुई निशानियां उसमें पाई और उसको अल्लाह की कसम देकर बुलाया। वह हाजिर हुई। जवान उसको माँ की खिदमत में लाया। माँ ने बाजार ले जाकर 3 दीनार में बेचने का हुक्म दिया और यह शर्त की कि सौदा होने पर फिर उसकी इजाजत हासिल की जाए। उस जमाने में गाय की कीमत उस इलाके में 3 दीनार ही थी। जवान जब उस गाय को बाजार में लाया तो एक फरिश्ता खरीदार की सूरत में आया और उसने गाय की कीमत 6 दीनार लगा दी, मगर इस शर्त से कि जवान माँ की इजाजत का पाबंद न हो। जवान ने ये स्वीकार न किया और माँ से यह तमाम किस्सा कहा। उसकी माँ ने 6 दीनार कीमत मंजूर करने की इजाजत तो दे दी, मगर सौदे में फिर दोबारा अपनी मर्जी दरियाफ्त करने की शर्त रखी। जवान फिर बाजार में आया। इस बार फरिश्ते ने 12 दीनार कीमत लगाई और कहा कि माँ की इजाजत पर मौकूफ आधारित न रखो। जवान न माना और माँ को सूचना दी। वह समझदार थी, समझ गई कि यह खरीदार नहीं कोई फरिश्ता है जो आजमाइश के लिए आता है। बेटे से कहा कि अब की बार उस खरीदार से यह कहना कि आप हमें इस गाय की फरोख्त करने का हुक्म देते हैं या नहीं। लड़के ने यही कहा। फरिश्ते ने जवाब दिया, अभी इसको रोके रहो। जब बनी इस्राइल खरीदने आए तो इसकी कीमत यह मुकर्रर करना कि इसकी खाल में सोना भर दिया जाए। जवान गाय को घर लाया और जब बनी इस्राइल खोजते खोजते उसके मकान पर पहुंचे तो यही कीमत तय की और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जमानत पर वह गाय बनी इस्राइल के सुपुर्द की। इस किस्से से कई बातें मालूम हुई। जो अपने बाल बच्चों को अल्लाह के सुपुर्द करे, अल्लाह ताला उसकी ऐसी ही उम्दा परवरिश फरमाता है। जो अपना माल अल्लाह के भरोसे पर उसकी अमानत में दे, अल्लाह उसमें बरकत देता है। माँ बाप की फरमानबरदारी अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह का फैज इनाम कुर्बानी और खैरात करने से हासिल होता है। खुदा की राह में अच्छा माल देना चाहिए। गाय की कुर्बानी उच्च दर्जा रखती है। बनी इस्राइल के लगातार प्रश्नों और अपनी रुसवाई के डर और गाय की महंगी कीमत से यह जाहिर होता था कि वो ज़िबह का इरादा नहीं रखते, मगर जब उनके सवाल मुनासिब जवाबों से खत्म कर दिए गए तो उन्हें ज़िबह करना ही पड़ा।
तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।